Let us all sit in any comfortable meditative posture. Spine, neck, head in one line. Shoulders and buttocks are in one line. We will be doing Om 3 times. Om will be longer, louder, and clearer, followed by prayers. Inhale. Om. Inhale. Om. Inhale. Vasudevasutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnau Vande Jagadgurum Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha. Put your hands by your side. With inhalation,
Let your hands come up. Take your hands up. Inhale, stretch. And with exhalation, come forward and bow down to Adi Guru Shiva, Jagat Guru, Shri Krishna, your Nija Guru, your personal Guru. And to all the Rishis, Munis, Maharshis, Acharyas, Siddhas, and Sadhakas who worked so hard, simplified scriptures for us, and so that today we can try to understand what He, H capital, what God, what Ishvara is, and try to connect through all these gurus to this Ishvara, the supreme power, or try to realize this supreme power, especially in these auspicious days. So please absorb all the blessings of all these gurus, and with that slowly come up. Take your hands up and then allow your hands to come down with the confidence that yes, we will realize that I am that pure consciousness, supreme power. I will connect to this universal power, universal energy within me in this very life. Namo Namaha. Shubha Deepavali to everyone. And आज के दिन भी यहाँ होने के लिए आप सबको और आपके फैमिली को धन्यवाद. Thank you so much to everyone. Yes, we should keep it holiday, but we are not, because we have to not only complete the syllabus, but these are the very pious days, very auspicious days. और कोई कोई दिनों में थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो वो अनेक गुना बढ़ जाता है, राइट? करेक्ट. आज का नरक चतुर्दशी का जो दिन है आप लोगों को मालूम है ना, आज हाँ, सो आज कृष्ण भगवान की जीत हुई थी. उन्होंने नरकासुर नाम का जो राजा था वहां से, बहुत स्मार्ट है ना कृष्ण भगवान, उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों को छुड़वाया था. लेकिन वो बहुत शाने क्यों है मालूम है? वो खुद अकेले नहीं गए थे. वो उनकी पत्नी सत्यभामा, उनकी पत्नी का नाम था कि उनकी बहन का नाम था? सत्यभामा. सत्यभामा, यस. सत्यभामा को साथ में लेके गए थे. सत्यभामा को साथ में लेकर के गए और फिर उन्होंने वो युद्ध किया और बोले आप करो, मैं आपका साथ में हूं, मैं आपको लेकर के जाता हूं. यस यस, यू आर माई पावर, यू आर माई एनर्जी. हाँ, ऐसा नहीं है कि सत्यभामा में शक्ति नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि कृष्ण भगवान में नहीं थी. लेकिन ये खास मौके पे वो सत्यभामा को इसलिए साथ में लेके गए कि जब नरकासुर को हराया फिर तुरंत ही, वो क्यों नरकासुर को मारा था? कोई राज्य लेने के लिए नहीं, लेकिन नरकासुर ने 16,100 स्त्रियों को, राजकन्याओं को बंदी बना के रखा था. और फिर वो यज्ञ करने वाला था और फिर उनकी आहुति या तो उनसे जो भी करना था वो करता. और इसीलिए उनको छुड़ाने के लिए, इसलिए वो अपनी पत्नी को लेकर के गए. फिर वहां पे जाने के बाद में अभी करेंगे क्या? सब लड़कियों को तो छुड़वाया, अभी वो अपने माता पिता के घर अगर वापस चले जाते तो क्या होगा? Will they accept them, or will everyone accept them with dignity? Like, they may not get accepted in the society with dignity. So many of them, may have to give up on their life, commit suicide, or, their life go haywire. And that's why सत्यभामा के मुंह से बुलवाया भगवान जी ने कि no, you cannot allow them to die.
We cannot leave them like this. So what should we do? Accept all the lady here, each and every one, all the ladies over here. सारी राजकन्याओं को आप अपनाओ। मैं कैसे अपनाऊं उनको? क्योंकि सब बड़े हैं और वो बोले आप तो वैसे भी बड़े नाथ हो। So then you be Natha, you be Swami, you be husband to everyone. And so then Krishna Bhagavan decided to take all of them. That was the plan actually. And so then Satyabhama convinced everybody. So that's why when they came back and then, in few days, अभी क्या होगा थोड़े दिनों में एकादशी आएगी तो तुलसी विवाह कहते हैं ना, नेक्स्ट एकादशी। यस, तो तुलसी के साथ तो विवाह होता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा विवाह भी तभी हुआ होगा क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगता है ना घर आने में। नहीं, वो एक ही दिन में घर आए थे, इसलिए नेक्स्ट डे को द्वारका में भी दिवाली मनाई गई। राम भगवान जी, राम रावण का युद्ध कंप्लीट हुआ था दशहरा के दिन, करेक्ट? दशहरा के दिन विजय हुआ था। फिर रावण को अग्नि संस्कार देने के बाद में फिर राम घर वापस आए थे, तो उस दिन दिवाली का दिन था, मतलब टुमारो। तो राइट नाउ राम भगवान जी इज ट्रेवलिंग विद सीता जी, ऑन बिटवीन, ऑन द पाथ, दे हैव टेकन, ऑन द वे बैक दे हैव टेकन हॉल्ट एट हनुमान जी इस जगह पे उनके घर गए थे, अंजनी माता को मिले थे एंड ऑल दैट। तो वो करते करते टाइम लगता है ना, तो कल तक सब अपने अपने घर पे पहुंच जाएंगे। तो अभी अभी तो आज तो है ना, युद्ध चालू है, युद्ध जारी है नरकासुर के साथ में, तो रात तक हो जाएगा, फिर कल तो भगवान जी घर पहुंच जाएंगे, बराबर है। सो नाउ भगवान जी व्हेन ही कम्स बैक विथ सो मच ऑफ संपत्ति, पूरा नरकासुर के ऊपर विजय था, तो ही कम्स विथ ऑल दैट थिंग। एंड भगवान जी को तो संपत्ति की कमी ही नहीं है ना, राइट? कभी भी बस who is God, who is Ishvara? Janmadasya yataha. Ishvara is that from whom is the birth, from whom is the continuation of our life, and in whom the dissolution of the universe happens. That is what we say, God, G-O-D, generator, operator, and destroyer. He is Ishvara, the eternal, Sanatan, the pure, Shuddha, the ever-free, Mukta, Almighty, Sarvashaktiman, all-knowing, Sarvajna, omnipotent, omniscient जो कहते हैं, omniscient, सर्वज्ञ, all merciful, कृपानिधान, कृपालु, teachers of all the teachers, आद्य गुरु। यही ईश्वर को हम सत्यम, शिवम, सुंदरम कहते, राइट? And so that satyam, shivam, sundaram, that sat tattva, eternal tattva, which is pure consciousness, shivam, and that's why most beautiful. कौन सी चीज हमें सुंदर लगती है? जो हमेशा रहती है, राइट? मतलब जो खंडित नहीं होती है, जो खराब नहीं होती है, जो which is not getting perished, which is not getting destroyed. And that is what God is. And so Ishvara, Sa Ishvaraha, that is Ishvara, who is अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इनइफेबल, प्रेम स्वरूप, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप। भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो प्रेम स्वरूप है, इसीलिए उसको पाना है तो विच इज द इजीएस्ट वे, smoothest way is to love him, because he loves everyone. And he is the Lord. He
द लॉर्ड हु इज ऑफ हिज ओन नेचर। भगवान हमारे जैसे, इसके जैसे, उसके जैसे है क्या? भगवान भगवान के जैसे। इसलिए हम अगर बनते हैं तो किसके जैसे बनते हैं? भगवान के जैसे। व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड? भगवान का स्वभाव। भगवान कैसे है? तो भगवान इज सत चित आनंद। करेक्ट? सत एवर प्रेजेंट प्रिंसिपल, चित pure conscious principle, always in bliss. And that's why whenever we connect to God or godly principle or godly people, भगवदीय people, भगवान या भगवान के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, we feel happy। कितनी भी तकलीफ में, कितने भी रो क्यों ना रहे हो, कितने भी दुख में क्यों ना हो, है ना, when we connect and the moment we connected to him, we feel blissful, relaxed, uplifted, elevated, and that's what God is. And when we say that, Bhagavan is Prema Swarupa, and so we are making him individual God, personal God. And so we all have one special love story with him. And so when we say that he's Satchit Anand, he's impersonal God, right? Bhagavan is Anirvachaniya, Satchit Ananda Swarupa. So when he is Satchit Ananda Swarupa, it is Nirguna Nirakar, correct? But when we talk about he is a Prema Swarupa, तो प्रेम कौन कर सकता है? सच्चित आनंद स्वरूप है, निर्गुण निराकार है, वो कभी प्रेम जता सकता है? कभी दे सकता है, ले सकता है प्रेम? नहीं। And so when we say Prema Swarupa, and then we are making him our personal, my own Bhagwan, right? We all have our own Bhagwan ji. हमें कोई ना कोई भगवान हमारे बचपन से माता पिता के थ्रू, हम जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं उनके द्वारा हमें मिले हुए रहते हैं, बराबर। वही भगवान में हमारा वाला भगवान अलग ही होता है, उसी में वही भगवान है, लेकिन उसके एक अलग शेड होता है। मेरे भगवान है ना, माफ करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं बहुत गलतियां करती हूँ। नहीं, अगर मैं डिसिप्लिन हूं और मैं गलती कभी नहीं करती हूँ, तो मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे भगवान मेरे जैसे है, राइट? हम लोग को सबको खाना पसंद होता है, तो हमारे भगवान जी को खाना पसंद होता है, अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड, राइट? सो जैसे हम वैसे हमारे भगवान होते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज, आई मीन स्क्रिप्चर्स डिस्क्राइब भगवान जी इज प्रेम स्वरूप ऑल्सो। एंड सो ईश्वर इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी को मैनिफेस्ट कौन से रूप में किया है? ईश्वर। When we talk about Ishvara, so that Nirguna Nirakara takes Sakara Swarupa. And so Nirguna Nirakara when takes Sakara Swarupa, तो वो जन्म लेके आते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, खेलते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास से सजा भी पाते हैं, गुरु जी को खुश करने के लिए गुरु जी के सारे काम भी करते हैं, बराबर है। फिर प्यार में भी पड़ते हैं और फिर शादी भी करते हैं, फिर बच्चे भी होते हैं। Why? Because God has come as a human being, taken avatar, incarnation, right? And so when he takes incarnation, so always, अभी वो तो खुद ईश्वर है, right? या तो शिव कहो, या तो विष्णु कहो, या तो ब्रह्मा कहो। शिव जी कभी अवतार लेते हैं? Shiva is that power, Mahesha is that power who helps us to conclude the life, complete the life, so that Navasarjan is possible, correct? So destruction or tamas, taking to inertia. Again, Srushti Pralaya hone ke baad mein there is nothing. So wo wala action is happened by that power, that God, that ईश्वरा, जिसे हमने महेश नाम दिया है। भगवान जी वही है, ईश्वर सेम ही है, लेकिन जब वो क्रिएशन का काम करते हैं उनको हम ब्रह्मा कहते हैं, और जब वो मेंटेन करते हैं, पूरे विश्व को संभालते, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, उनको तब हम कहते हैं विष्णु, हु इज व्यापक एवरीवेयर। व्हाई? टू मैनेज, वो अभी नवरात्रि में हम लोग स्त्रियों को दिखाए थे ना, बहुत सारे हाथ वाले, और इसीलिए देवियों को सबसे ज्यादा हाथ होते हैं, बराबर। हम भगवान जी को 4 हाथ देते हैं जनरली, बराबर।
सिर्फ विश्व रूप दर्शन में ही भगवान जी के बहुत सारे हाथ दिखाए हैं, तो बहुत सारे सिर भी दिखाए हैं। बाकी अदरवाइज देवों के हम मैक्सिमम 4 हाथ दिखाते हैं, लेकिन देवी के 8 या मन में नहीं, राइट? वाई? बिकॉज एनर्जी कैन टेक एनी रूप, सिंपल। Energy can take any rupa, can do anything and everything. Yes, of course, because it is the power of pure consciousness. And so, you know, Vishnu is that who is Vyapak everywhere. And he maintains, manages, and so he need everything. इसलिए हमारे विष्णु के जितने भी अवतार है, वो सारे अवतारों में he comes with every possible thing with him. Why? एबंडेंस के साथ वो आते। क्यों? क्योंकि उनको देना है सबको एबंडेंस। कौन दे सकता है? जिसके पास है वही, राइट? एंड सो ही कम्स विथ एवरीथिंग, एंड सो इन एवरी बर्थ ही कम्स विथ हिज वाइफ। अगर राम बन के आते हैं तो वही शक्ति सीता बन के उनके साथ आते हैं। अगर वो कृष्ण बन के आते हैं तो उन्हीं के साथ में रुक्मिणी या अलग अलग रूप में वो आते हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान हमेशा सब जगह जाते हैं, तो किसके साथ जाते हैं? लक्ष्मी जी के साथ जाते हैं, भूदेवी के साथ जाते हैं। इसीलिए तो एक स्टोरी ऐसी है कि एक दफे है ना, कुबेर ने, या तो बलि राजा है, उन्होंने, ओके, सो उन्होंने, अभी जब भाई दूज आएगी तब की बात तो अलग है, मतलब तो वो उन्होंने क्या किया था, भगवान जी को अपने बंदी बनाया था। और बंदी बनाया था तो फिर उसको छुड़ाने के लिए कौन जाएंगे? तो जब मुझे संभालने वाले कोई, अगर किसी ने बंदी बनाया है, तो उसकी जो अर्धांगिनी होती है, लक्ष्मी जी है या तो जो भी देवी है, जो भी शक्ति है, इज मच मोर पावरफुल, राइट? एंड सो वो पहले जाती है। एंड सो दे से दैट, यू नो, बलि राजा के वहां जब वो पाताल में थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जहां जाऊंगा भगवान जी आप मुझे संभालोगे। तो बलि को पाताल में भगवान जी ने भेजा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तो पाताल जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको मुझे संभालने के लिए आना पड़ेगा। तो भगवान जी को उसको संभालने के लिए, मतलब उसके गार्ड बन करके पाताल लोग जाना पड़ा। तो लक्ष्मी जी वहां उनके पीछे पीछे गई, करेक्ट? एंड इसीलिए कल के मैसेज में भी हम लोग ने अगर पढ़ा होगा, तो जहां जहां विष्णु है वहां वहां पे लक्ष्मी जी होगी। तो लक्ष्मी जी की पूजा सिर्फ धनतेरस के दिन करना ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ऑल द 3 days शुरू के एकादशी, उसको भी रमा एकादशी कहते हैं, ये वाली एकादशी को। रमा मतलब लक्ष्मी जी, कि वी आर इग्नाइटिंग लक्ष्मी जी। मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग तो साधक लोग हैं, योगा का मार्ग है, और हम लोगों को तो मोक्ष पाना है, ये सबसे वैराग्य करना है, तो फिर ये लक्ष्मी जी और धन चाहिए, वैभव चाहिए, ये वाले हम लोग क्यों सोचते हैं? हमको ये नहीं सोचना चाहिए ना। छोड़ वो सकता है जिसने कभी पाया है। अगर जिंदगी में कभी कुछ पाया ही नहीं है, वो छोड़ ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे सारे भगवान, या तो सारे बड़े बड़े वैरागी, महावीर एंड बुद्ध से लेकर के सारे लोग, उन लोग ने तो एकदम रिनंसिएशन का ही रास्ता दिखाया है, बराबर। बट दे आर ऑल्सो फ्रॉम द किंग, प्रिंसली, they were prince, they were supposed to be the king. Yes, when you have everything, then you understand what it is to have it, and what it is to live without it, because you can see, you can connect the higher thing than this. You can see higher purpose or higher bliss in something else. Then only we can give up. And that's why अभी हम तो शुरू किया है ना साधना, करेक्ट? अभी तो हम लोग पापा पगली मीन्स अभी तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन लेवल पे है, राइट? प्री प्राइमरी में पढ़ रहे हैं। हम लोग के पास अबंडेंस है क्या? कोई नहीं बोलेगा है। हाँ, हमारे पास है, काफी कुछ है, लेकिन वही ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, करेक्ट? एंड सो वी नीड, व्हाई? इफ वी विल गेट इट, देन ओनली वी कैन गो बियॉन्ड इट। हाँ, हमारे लिए सबसे बड़ा सुख क्या होता है? कॉमनर्स, हम सब गृहस्थ लोग हैं, बराबर? हमारे लिए इसीलिए ना पूर्व मीमांसा teaches us कर्मकांड, and
पूर्व मीमांसा के लिए मोक्ष मतलब क्या है मालूम है? मैंने बताया होगा लास्ट ईयर, ऑफ कोर्स। व्हाट इज मोक्ष? नोट्स में भी कहीं एक लाइन है वो, यू नो, पूर्व, अकॉर्डिंग टू पूर्व मीमांसा मोक्ष इज इक्वल टू स्वर्ग प्राप्ति। क्यों? व्हाट इज स्वर्ग? स्वर्ग इज दैट प्लेस वेयर वी हैव ओनली हैप्पीनेस, वेयर ओनली हैप्पीनेस एग्जिस्ट, दैट इज द स्वर्ग। सो हमारे कॉमन मैन के लिए मुक्ति मतलब क्या? दुख मुक्ति बराबर ऑब्स्टेकलों में से मुक्ति। एंड दुख मुक्ति, ऑब्स्टेकल मुक्ति मतलब क्या? कि नो दुख, नो प्रॉब्लम, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। इसलिए हमारे लिए फर्स्ट लेवल ऑफ मोक्ष, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोक्ष इज व्हाट? स्वर्ग प्राप्ति। एंड देन वी रियलाइज कि ओ, वहां से मुझे वापस आना, वहां पे पहुंचेंगे तब पता चलेगा ना। 5th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तब पता चलता है ना कि भाई और आगे है। अभी तो सेकेंडरी के बाद में फिर हायर सेकेंडरी आएगा एंड ऑल, लेवल लेवल जाते रहते ना, करेक्ट? हाँ, सो सीधा मोक्ष प्राप्ति हम समझ नहीं सकते, इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप। एंड सो स्वर्ग प्राप्ति तक पहुंचने के लिए भी हमें क्या चाहिएगा? डिफरेंट डिफरेंट सीढ़ी। अगर यही ये नहीं है, ये नहीं है, उसी में अटके रहेंगे तो कैसे जाएंगे? और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे वेदों में, हमारे पूर्व मीमांसा में, मतलब मंत्र, ब्राह्मण एंड आरण्यक आगे के तीनों में है, सबसे ज्यादा क्या दिया है? मंत्र डिफरेंट डिफरेंट दिए है, करेक्ट? डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स दिए। क्या? क्यों? कि हमारी जो जो भी कामना है, जो जो भी हमारी कामना है उसकी पूर्ति के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स। एंड देन हमारी डिजायर्स ये खत्म हुई तो एक में खत्म हो जाता है क्या? गाड़ी चाहिए तो छोटी सी गाड़ी ले ली, फिर नहीं अभी बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर बड़ी गाड़ी है ना, अभी तो लिमोजिन चाहिए। सी वी ऑल गो हायर एंड हायर एंड हायर, दिस इज ह्यूमन नेचर। यस, स्क्रिप्चर्स नोज, वेद नोज। एंड फिर वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, फिर yes, and then finally you will go to the highest desire, ultimate desire is moksha. Highest purushartha, fourth purushartha is moksha. Then only नीचे के लेवल से ऊपर जंप कर सकेंगे क्या? सीढ़ियों थ्रू जाते हैं, राइट? स्टेप बाय स्टेप. And that step by step we are going. And that's why, we have so much of desires and demands. लास्ट ईयर एक स्टोरी कही होंगी कि एक बंदा था, वो बाबुलनाथ के मंदिर में वो बेगर बना था, और फिर भगवान जी ने कहा मांग मांग, मांगे थे दूध, तो उसने क्या मांगा था? एनीबडी? यस आकाश? इज इट सोने का कटोरा? सोने नहीं का नहीं, मतलब हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे पीछे का मैं बोल देती हूँ तो याद आ जाएगा कि वो बाबुलनाथ में बहुत सारे स्टेप्स है, तो आगे के लोग जो बैठते हैं शुरू के स्टेप्स में, क्योंकि जैसे ही मंदिर में हम एंटर करते हैं तो हमें मालूम है बहुत मांगना है भगवान से, तो फिर वो छोटा छोटा कुछ मांगते हैं, 1 रुपया दो, 2 रुपया दो बाबा, तो हम दे देते हैं, है ना, 2 4 5 10। अभी तो बहुत सारी सीढ़ियां है तो सब जगह पे थोड़े देंगे, तो 5 6 के बाद हम स्टॉप कर देते हैं, फिर भगवान के पास जाकर के बताते नहीं नहीं अभी क्या वो कौन, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके भगवान जी से मांगते हैं ना। कोई एक पर्टिकुलर बंदा का रील बहुत हुआ था, ऐसे ऐसे करके भगवान जी के पास मांगते, फिर सब लोग बोल रहे थे अगर वो इतना मांग रहा है तो हम क्यों नहीं मांगे, भाई तू भी मांगना, तेरी ताकत, करेक्ट? सो भगवान जी से हम बहुत मांगते हैं और फिर भरोसे के साथ वापस आते कि मेरे को सब कुछ मिलेगा। और फिर जैसे मंदिर में से बाहर निकलते तो आगे की जो सीढ़ियां है ना मंदिर के बाहर के तुरंत नीचे उतरने की, तो वहां पे हम लोग सबको देते जाते कि मेरे को तो बहुत मिलने वाला है, तो तुरंत देते हैं। तो 5 6 7 8 10 तक देते हैं, फिर उसके बाद में हटा सावन की घटा, अभी कितने लोगों को देंगे? तो जो बीच में बैठे हैं ना भिखारी, उनको ज्यादा भीख नहीं मिलती है। क्यों? वो लोग अप्रेंटिस होते हैं, वो नया बिजनेस सीख रहे होते हैं। जिन लोग ने प्रीमियम पैसा पे करके जगह ली है ना, वो लोग एकदम उसको आगे मिलता है या तो ऊपर मिलता है, लेकिन बीच वाले लोग अभी नया नया सीख रहे हैं, वो दे कांट पे राइट नाउ फॉर द प्रीमियम प्लेस, राइट? इसीलिए तो एक बंदा नया नया वहां पे बैठा था, और फिर वो और नया मुल्ला बहुत ज्यादा मांग करता है ना, नया नया कोई काम शुरू करते तो हम लोग बहुत जोर जोर से करते हैं ना, फिर उसके बाद में ठीक है, करेक्ट? तो वो एकदम जोर जोर से, उसने कहा सावन महीने में बाबूलाल सब लोग जाते हैं ना, तो सावन महीने में वहां पे बेगर्स की भी ज्यादा भीड़ होती है, लोगों की तो होती है क्योंकि वहां पे लोग आ रहे हैं, इसलिए बेगर्स भी ज्यादा होते हैं। एनीवे, तो वो लोग बैठे थे, वो बीच में बैठा, बेचारा नया नया था, इसलिए उसको बीच में जगह मिली थी। तो जो भी आता था जाता था तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेगा?
तो कुछ दे दो बोलेंगे उससे, तो मतलब में तो उसमें सब लोगों को लगता है कि तू मांग रहा है तो तेरे को नहीं देंगे, लेकिन अगर भगवान का नाम लेते हैं तो तुरंत ऐसे देखेंगे ना, शंभो शंभो, तो वो तो शुरू हो गया, जय महादेव, शंभो शंभो शंभो। इतनी दफे बोला, उसको भी इसके तो ना नहीं है, लेकिन इतनी दफे शंभो 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 उसने कहा ना, महादेव महादेव, तो महादेव प्रकट हो गए। वो तो भोले है ना, तुरंत आ जाते हैं। तो भगवान तो आ गए। और फिर भगवान तो क्या बोलते हैं, मांग मांग, मांगे ते मैं देता हूं, तू जो मांगे वो मैं देता हूं। अगर हम होते तो क्या मांगते? और उसको तो क्या लग रहा था कि यार पहली पहली पहले शुरू वाले लोग कितने लकी है, कितना पैसा मिलता है, ऊपर वाले लोग कितने लकी है, कितना पैसा मिलता है, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है। शंभो शंभो बेचारा कह रहा था, वो तो अट्रैक्ट कर रहा था ये लोगों को कि वो लोग उसको पैसे दे। लेकिन कौन अट्रैक्ट हो गया? या यू नेवर नो, डू इट बेस्ट। जब कभी भी कुछ भी कर रहे हो, बेस्ट कर लो, हमें नहीं मालूम है कौन सुन रहा है। करेक्ट। एंड सो भगवान जी तो आ गए और बोले, मांग मांग मांगे ते दू। क्या मांगा होगा उसने? यस राजेंद्र भाई। हाँ, फर्स्ट स्टेप या तो फर्स्ट वाली पायरी सीढ़ी दो, या तो नीचे वाली फर्स्ट वाली सीढ़ी दो, कहीं पे कुछ भी दे दो कि भाई मिले। क्या मांग सकता था? पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का ऐश्वर्य मांग सकता था कि नहीं? भगवान को मांग सकता था नहीं कि नहीं? सब कुछ, कुछ भी मांग सकता था कि नहीं? और भगवान तो देने ही खड़े थे। लेकिन कहां पे प्रॉब्लम है? मेंटालिटी। वी डोंट नो हाउ टू आस्क। डू वी नो? हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने सॉल्व कर दिया है। क्या मांगना चाहिए ना, या तो क्या हमारी मांग हो सकती है, वो सारी दी हुई है। और उन्होंने जब कभी भी कोई भी स्तोत्र लिखे है, उसमें नो, इवन उपनिषद में है, मृत्तिका चमे, ये चमे वो चमे, चमे मतलब चाहिए, आई नीड इट, आई वॉन्ट इट। नमा एंड चमा वी हैव, शिव जी के और बाकी सबके है बहुत सारे, इसमें नमा एंड चमा के वो सूक्त है। तो नमा मतलब हम लोग नमस्कार करते हैं एंड देन मांगते हैं, ये भी दे दे भगवान, वो भी दे दे, मतलब वरुण, धनम, हाँ। सो ये सब डिजायर्स हम लोग ने किए, क्यों? बिकॉज दिस डिजायर्स आर नॉट, यस, यह लोगों को संभालती है, एट द सेम टाइम हमारे परलोक को भी सुधारती है। हायर लेवल पे भी, हायर लोक में भी, हमारी उन्नति के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे ऊर्ध्वगति के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, एंड अल्टीमेटली निश्रेयस के लिए, मंगल कल्याण मोक्ष के लिए भी मदद रूप हो सकते हैं। एंड वो सारी मांगे अगर उन लोगों ने दिए तो हम वही मांगेंगे ना, वही रिपीट करने का ना। करेक्ट। क्योंकि हम तो कुछ भी छोटू छोटू मांग लेंगे, लेकिन वो मांगेंगे ना, ऐसे मांगते हैं कि एक एक बंदा था हमारे जैसा ही, लेकिन वो स्मार्ट हो गया था ये ऋषि मुनियों वगैरह के साथ में रह करके, तो उसने है ना, भगवान जी उसके पास आए ना, तो उन्होंने तय करके रखा था, और उन्होंने कहा कि 7 पीढ़ी तक, 7वीं पीढ़ी में जो बच्चा मेरे घर में बेटा जन्मा है, मेरा पोता, उसको मैं सोने के वो गोड़िया पालने में, मैं उसको नो, मैं चांदी के ढोलिये पे बैठ करके मैं उसको झुला रहा हूं। 7वीं पीढ़ी के पोते को सोने के पालने में, चांदी के ढोलिया, ढोलिया मतलब वो पलंग पे बैठ करके मैं झुला रहा हूं। मतलब उसने कितना क्या क्या मांगा? आयुष्य मांगा, धन संपत्ति, और इतने मतलब लंबे तक उसको लड़के होते रहे घर में, या बेटियां हो ठीक है, लेकिन लड़के होते रहे। क्या क्या मांग लिया? एक ही सेंटेंस मांगा। Because smart way of asking. Yes, this smart way of asking is there with our Rishi Munis. And so they have given. And so one of that sukta, Shri Sukta, today we will all do together. Okay? Yes. Group energy works the best, right? So we will put forward. I have sent you all in the group. Please open that. One is in Sanskrit first time, and second time it is in Gujarati. I couldn't, as I mentioned, I couldn't find
आई फाउंड इट, बट सिर्फ संस्कृत वाला था, उसमें कोई कोई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग श्लोक भी बीच में ऐड किए थे. सो आई थॉट दिस इज द क्लासिकल वन, वी विल यूज दिस ओनली. With me all you can say, yes, of course you can keep it mute. Harihi Om. हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णा रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयम् गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारथ मध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहव्ये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारम् आद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहव्ये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वाणेऽणुदमे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आद्रां यः करिणीं यष्टिं स्वर्णं हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वानविन्देयं पुरुषानहं यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहूयादाज्यमन्वहं सूक्तं पंचदर्शं च श्रीकाम सततं जपेत् पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायै गोदायै
धनदायै महाधने धनं मे लभतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनम अग्निर्धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसुः धनम इंद्रो बृहस्पतिर् वरुणम धनमस्तु मे वैनतेय सोमं पीबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमेनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न अशुभाम अति अशुभम मति न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्री सुक्तं जपेत् सरसि जनिलये सरोजहस्ते धवलतराशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोग्ने त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमादेवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री वर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यं मा विधाच्छोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। इति श्री सूक्तम समाप्त। यू रियलाइज क्या क्या कहा है। एक तो लक्ष्मी जी के लिए जो भी शब्द है ना, वल्लभ वल्लभ प्रिया या माधवी माधव प्रिया, वो तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन कौन से वाली लक्ष्मी मांगी है एक दफे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे शब्द आप अपने आप समझ में आएंगे। अनपगामिनीम लक्ष्मी, अनपगामिनी मतलब जिसके पैर नहीं हो ऐसी लक्ष्मी। क्यों मांगी है? तो मतलब वो तो आ जाएगी, और अगर पैर है तो चली जाएगी। इसीलिए बिना विदाउट लेग्स, कि वो एक दफे आए फिर कभी न जाए। और अगर लक्ष्मी जी एक दफे आए और कभी न चाहे जाए, ऐसा हम चाहते हैं, तो लक्ष्मी जी की गति क्या है? वो कहाँ जाते, किसके पास रहते? जहाँ अच्युत है, जहाँ विष्णु भगवान है, जहाँ भगवान है। डू वी वांट लक्ष्मी जी फॉर एवर विथ अस वैभव? देन बी विथ अच्युता। लेट विष्णु बी let your home, let your body be abode of, home of विष्णु। लक्ष्मी जी तुरंत आ जाएगी, क्योंकि विष्णु जी भी लक्ष्मी के बिना कभी नहीं रहेंगे। राइट, सिंपल। एंड ये आइडिया महान लोगों ने बताया है बॉस, ट्राइड एंड प्रैक्टिस्ड टेक्टिक्स है। एंड सो वी आर द ऑलवेज फॉलोअर्स, राइट। किसी ने किया इसलिए हम लोग कॉपी करते हैं ना। अभी वो सीजन वो होता है ना, सब लोग ऐसे वाले इस दफे दिवाली के कंडील लाएंगे, तो सारे लोग वैसे ही लाते हैं ना भाई, अवेलेबल होता है ना, ट्रेंड होता है ना। सो हम तो फॉलोअर्स है, सो व्हाई नॉट टू फॉलो देम। अगर फॉलो भी करना है तो बंदे बड़े बड़े लोगों के फॉलो करेंगे ना, ऐसे वैसे को थोड़ी फॉलो करेंगे। सो लेट्स अस फॉलो एंड इनवाइट ईश्वर। लेट ईश्वर कम टू अस एंड बी विथ अस। And when Ishvara is being with us 24/7, क्या हो जाएगा? सतत किसी के साथ रहते तो कैसे हो जाता है? क्या हो जाता है?
स्वभाव अपना है सब। ईश्वर नहीं होते हम। उनके जैसे वैल्यू बन नहीं जाते। रहती है। करेक्ट। हाँ, इसलिए एक ने बहुत बंदे ने अच्छा कहा है, कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण में ही खो गए, कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण के ही हो गए, कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण में वो बस गए, और कृष्ण कृष्ण पढ़ते पढ़ते कृष्ण को वो पा गए, कृष्ण कृष्ण सुनते सुनते कृष्ण में वो झूम गए, और कृष्ण के कृष्ण छूते छूते कृष्ण में समा गए। लेट अस ऑल बी ईश्वरमय इज द ओनली वन जिसके बारे में सब लोगों ने लिखा है, सब लोगों ने कहा है, सब लोगों ने सुना है, एंड देन फाइनली कहा है कि स्टिल वी कैन नॉट एक्सप्लेन, we cannot describe him completely. क्यों? Because ईश्वर is always तस्य तिष्ठति दशांगुलम। If I am not making mistake, पुरुष सुक्त में ऐसा कहा है, पुरुष सुक्त है उसमें ऐसा कहा है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। जो ईश्वर है वो सहस्त्र शीर्षा, क्योंकि उसके तो हजारों सिर है। हम जिस सारे प्योर कॉन्शियसनेस, पुरुष मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस, राइट? यस, सो हम पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस के ही बॉडी है, राइट? सो सहस्त्र शीर्ष है, सहस्त्र अक्ष है, सहस्त्र हाथ पैर, वो सब कुछ है। स भूमि सर्वतः स्पृत्वात् तस्य तिष्ठं दशांगुलम। Even though he is everywhere in everything, still he is तस्य तिष्ठति, वहां से दशांगुलम 10 उंगली के लेवल पे वो होते हैं हमेशा। जहां पे हम पहुंचेंगे उससे थोड़ा और 10 उंगली तक, 10 उंगली, 10 उंगली। एंड सो वेयर ही स्टेज, वेयर ही इज विथ अस, सिर्फ 10 उंगली का है। तो 10 उंगली, 10 उंगली हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? यस, अभी इतना पहुंच गए ना, थोड़ा ही बाकी है ना, चल भगवान अभी तो तेरे को पा ही लेंगे। एंड सो लाइक दैट नो वी बिकम बेटर एंड बेटर, अपलिफ्ट अवरसेल्फ, प्यूरिफाई अवरसेल्फ, एंड देन फाइनली sublimate ourselves, and finally attain that pure consciousness. And so can anyone survive without having Ishvara? In last class also we saw that, right? इसलिए सब लोग पूछे तू है किधर भाई तू, करेक्ट? है कहाँ रे तू, क्योंकि यहाँ पे बहुत तकलीफ है तेरे बिना, तेरे को मिलना है, तेरा एड्रेस पूछते हैं सब लोग। सो ऐसे ईश्वर को पाना आसान है? नहीं, है नहीं। भी अगर हमें किसी को ढूंढना है तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? एड्रेस, एड्रेस चाहिए। भगवान का एड्रेस कहाँ ढूंढेंगे? सबसे आसान है हमारे अंदर, everywhere, हमारे अंदर भी, ऑफ कोर्स हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, इन एवरीथिंग ही इज। नॉट ओनली दैट, he himself he has given his address in भगवत गीता, in scriptures, everywhere। मुझे पाना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मैं कहाँ कहाँ तुम लोगों को मिलूंगा। उन्होंने सब जगह पे सब बात, हर एक चीज उन्होंने लिख करके रखी है। एंड नॉट ओनली दैट, you know, when we seek him with all our heart, okay, then हम उसको सचमुच में बहुत पाने की कोशिश करते, प्रयत्न करते, भले ही हमारा बेबी स्टेप हो, छोटे छोटे ना पापा पगली है ना, एकदम छोटे छोटे पैरों से हम लोग, है ना, छोटे छोटे स्टेप से, छोटी छोटी मेहनत से, छोटी छोटी साधना से। लेकिन अगर हम प्रयत्न करते, तय करते कि यार तेरे को तो अभी पाना ही है बॉस, ये अगर हम प्रयत्न भी करते हैं ना, देन ही सेज व्हाट, यू नो, आई विल बी फाउंड बाय यू, आई विल बी फॉर श्योर फाउंड बाय यू, बिकॉज आई लुक आफ्टर यू। परित्राण मैं करता हूं, तुम्हारे योगक्षेम मैं चलाता हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ ही हूं। ही इज देयर विथ मी, विद इन मी 24/7, correct? So he is not only showing us the address, rather he find us
हमारी क्या औकात है उसको ढूंढे? तो वो क्या करता है, हम लोग को वो रास्ते पे ला करके रख देता है कि हम उसको आसानी से उसे भिड़ जाए, उससे टकरा जाए, उसको मिल जाए. सो स्मार्ट. दैट्स व्हाट वी डू. हमारे बच्चों के साथ या ट्रेजर हंट वगैरह करते हैं तो वी ऑलवेज गिव द हिंट्स कि यार क्योंकि हमें भी डर होता है ये नहीं कर सकेगा तो फायदा, तो आई मीन वी ओनली फील ले कि यार यार है ना, मेरा बेटा मेरे को नहीं ढूंढ पाएगा, तो वी डोंट वांट देम टू लूज, राइट? डू वी एवर वांट आवर चिल्ड्रन टू लूज? No, even he does not want us to lose, right? And so he gives us hints. मैं कहाँ हूँ कैसे, और अगर नहीं दिख रहे और हम लोग थक करके बैठ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं से वो आवाज करेगा, ढूंढो मुझे, मैं कहाँ हूँ, ये वगैरह करे. So again we start. अरे हाँ आसपास में कहीं है, आसपास में कहीं है. Let me again start. Let me again start. You know, the moment we accept his presence, he will very easily reveal himself to us, for sure. Still we need proof for existence of God, right? तो हम उसके उसके कितना एक होए पुरावा, तो बोलू यहाँ पे तो हर एक जगह पे उसके प्रूफ्स है. वो बहुत अच्छी शायरी थी लेकिन अभी मैं भूल गई, जाने दो, क्योंकि आज है ना शायरी से ज्यादा वो श्लोक वगैरह स्तोत्र पे कंसंट्रेट किया था ना, तो दिमाग पे से चला गया शायरी वायरी. इसलिए सो हाउ कैन वी प्रूव हिज एग्जिस्टेंस? The complexity of this universe, don't you think in itself proves his presence? How such a beautiful and such a complex universe can exist, and how beautifully sun, moon, मेरे हाथ में अगर वो आएगा ना तो वो मैं भेजूंगी. वो एक वेब सीरीज है, वो सीरीज आती है, उसमें एक यंग बच्चा है, वो नाम मैं भूल गई. वो यंग बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी मम्मी भगवान में मानती है, तो उसमें वो दोनों के डायलॉग्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल. एंड देन यू नो इन दैट ही सेज दैट कि अगर सन से हम लोग है ना एक थोड़े ही इंच पास में होते, सन से हमारी पृथ्वी दूर है, राइट? लेकिन थोड़े ही ज्यादा पास में होते ना तो पृथ्वी का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, पृथ्वी के ऊपर सारी चीजें जल जाती. और थोड़ा ही दूर होता है ना तो इतना ठंडा होता है हमारा पृथ्वी कि उसमें कोई जीव पनप ही नहीं सकता था. Who decided this distance? Exactly like that. So there can be सृष्टि, there can be light, there can be beings, life. Correct? And so this complexity in itself, you know, proves that he is there. Not only he is there, he created this universe. Not only that he created this universe, he lives in this universe. He created this universe from himself. And so that's why this whole universe, it is nothing else but him. Whenever we are talking about God and when we say him, then we write H capital. Correct? Whenever we write being, so pure conscious, the pure being when we are talking about, then that time also we write B capital. So it's being like that. So being this, being that, when we said being like this, being like that, then we write being normal. But when we are talking about being, self, pure consciousness, myself being, so then we write B capital there. So this earth, the universe, different planets, different species, vegetation, recycling, everything, including water, it would not have been there. Correct? Human body, when we see human body, you know, that's why, you know, they say that doctors can never be atheist. Why? Because, you know, who has, you know, made eyes so beautifully? Eyes को देखने के बाद, eyes को study करने के बाद में हमने कैमरा ढूंढा, क्योंकि कैमरे में वो सीधे लेंस रखते हैं तो कोई पिक्चर नहीं आता है, एक सीधा एक उल्टा होता है, ऐसा कुछ है उसका टेक्निक, तब जाकर के हमें सीधा दिखता है. And that is what, how, you know, our eyes are made. Each and every system in our self, each and every system is potent enough, capable enough, intelligent enough to run its own things. Okay? Heart system, breathing system, digestion system, everything is complete in itself. Still, they all are connected. Each and everything. You know, that's why, you know, I think I must have mentioned it. You know, people who get cancer,
फिर वो कीमो वीमो कराते हैं, कीमो कराते हैं, तो सारे कैंसरस सेल्स डाइड, करेक्ट, जल करके खत्म हो जाते हैं। देन स्टिल डॉक्टर सेज ना कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, थोड़े सालों के बाद इट मे कम बैक। तो जो नए सेल बने हैं, जो नए सेल बने हैं, how it knows that it was having some cancer? Because each and every cell, when it produces the new cell and then purana wala dies, right? So when it creates new cell, at that time it gives complete memory of that cell, how it is. नहीं तो फिर नाक थोड़ा चेंज होता, हमारी आंख थोड़े दिनों में चेंज हो जाती, because each and every cell dies, right? 6 महीने या 7 महीने में तो पूरा ओवर होल्डिंग हो जाता है हमारे शरीर का, पूरा खून बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आर वी सेम एनी टाइम एवर? नो, वी आर नेवर सेम, वी कीप्स ऑन चेंजिंग। हमारा बॉडी कितनी दफे बदल चुका है, लेकिन स्टिल हमारा मेमोरी सेम रहता है, हमारा बाकी सब कुछ सेम रहता है। व्हाई? ईच एंड एवरी सेल कैन ट्रांसमिट कंप्लीट मेमोरी, एग्जैक्टली अपने जैसा ही नया सेल बनाता है, तब जाके वो पुराना सेल डाई होता है। मैम डीएनए होता है, डीएनए। Yes, DNA and all. Yes, yes. But how that's all possible? Because there is all the time some energy running behind it, looking after it. ये तो छोटे से लेकर के बड़ा बड़ा काम, how it happens? हमारा छोटा छोटा उसमें ऑफिस है, ये है, फैक्ट्री है, कितना कितना गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा मेगा, उसका जस्ट सी द वॉल्यूम ऑफ दिस ब्रह्मांड। नॉट ओनली भारत देश या ऐसा कुछ, करेक्ट, पूरा ब्रह्मांड, how nicely, beautifully it is going on. No? If they say that Big Bang से हुआ, can Big Bang, because of Big Bang, this complex human body come into existence? Just think. Blast हुआ, okay, blast हुआ, उसकी वजह से planet बना, टुकड़े टुकड़े हो गए, that's what we say, correct? Big Bang हुआ और उसकी वजह से ना सारे अलग 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 टुकड़े हुए, एक बड़ा सा गोला था, तो उसमें से ब्लास्ट हुआ और सारे टुकड़े इधर उधर बिखर गए, और फिर वो सारे टुकड़े अलग अलग प्लेनेट्स बने। हाँ, तो प्लेनेट्स बने, लेकिन हम कैसे बने? इन ईच एंड एवरी प्लेनेट, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है। अगर हम पृथ्वी के ऊपर देखें तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स पीपल, हम लोग कैसे बने? वो उसमें से ब्लास्ट हुआ और उसमें से फिर वो पृथ्वी का टुकड़ा या तो जमीन का टुकड़ा या तो वो जो भी प्लेनेट था जो टूटा उसका जो टुकड़ा, उसमें हम लोग बने कैसे? कैन वी इमेजिन? एंड दैट ऑल्सो, कितने कितने लोग, कितने सब अलग अलग, वही फेस है सबका, 2 आंख 2 कान 2 नाक, लेकिन आर वी स्टिल सेम? नहीं, सबकी उंगलियां सेम है, 5 उंगलियां ही है, लेकिन हर एक उंगली की, हमारी सबकी आंख का वो और ये उंगली का निशान, सारी उंगलियों का निशान सबका अलग अलग है। एवर इट गेट्स रिपीटेड, एवर। इसलिए तो आधार कार्ड वगैरह में या तो आंख का या तो उसका रखते हैं, करेक्ट? व्हाई? इट नेवर गेट, आई मीन कितनी वेराइटी भाई, एंड हाउ कॉम, आई मीन हु कैन मेक इट? एरा गेरा नत्थु खेरा कुछ बना सकता है क्या ऐसा? एंड सो जस्ट थिंक व्हाट गॉड इज, who ईश्वर इज, एंड who आर वी? मिनिएचर, भगवान जी के अंश है हम। अंश जब बोलते हैं, मिनिएचर जब बोलते हैं, एग्जैक्टली उसके जैसे, बराबर एग्जैक्टली वो। सो उसमें जो पावर है वो हमें भी है। कैन यू इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट वी ऑल आर बॉस? और क्या बना के रखा है हमने हमारे को, अपने आप को, तब उसको दुख होता है। हम हमारे बच्चों को देते, ये देते, वो देते, एंड देन व्हेन दे आर यूजिंग इट इन अ बैड वे, रॉन्ग वे, तेरे को इसलिए दिया था क्या? इसलिए तेरे को पढ़ाया था क्या? इसलिए ये किया था? भगवान बोले इसलिए तेरे को ह्यूमन बॉडी दिया है क्या? ह्यूमन लाइफ दिया है क्या? ह्यूमन बीइंग बनाया है क्या? दिस इज व्हाट scientist has no explanation for many things, especially explosion क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो बोले कि नहीं, उसके अंदर गर्मी थी बहुत ज्यादा, इसलिए अचानक से हुआ। There has to be some power which forced it, बाहर अलग अंदर अलग, कुछ something,
Which was that power? And then पहले तो वो लोग नहीं मान रहे थे, but finally have they accepted God particle? कि और नीचे और नीचे और छोटा और छोटा और छोटा, जो भी लास्ट पार्ट उन्होंने पाया है उससे भी छोटा अवेलेबल है, यस है, बट दे आर नॉट एबल टू रीच टू दैट, एंड सो फाइनली दे हैव गिवन नेम गॉड पार्टिकल. The whole universe runs with the universal law of gravity. अलग अलग देश अलग अलग है सबके, वो देश को चलाने वाले एकदम तुमाखी लोग होंगे, अपने अपने तुर्रम अपने अपने उसमें रहने वाले, बट कोई भी देश कहाँ पे भी हो कैसे भी हो, लेकिन वो सब कोई कोई यूनिवर्सल रूल, बहुत सारे यूनिवर्सल सेम है, सब पे सेम लेवल पे ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, ऑल दैट थिंग्स आर एवरीवेयर इन होल अर्थ. It's there. Scientists found it. Scientists discovered it. Scientists means the intelligent people, they have researched about it. What is the meaning of research? Search को वापस research. वो search को वापस research. Correct? What is discover? जो cover हो गया था उसको discover किया, open up किया. जो hidden था उसको उजागर किया. तो उन्होंने बनाया तो नहीं है, राइट? They have not made it. They have just discovered it. This, different law. उन्होंने फाइंड किया. क्यों? क्योंकि था, ऑलरेडी था, किसी ने बनाया हुआ था. हमने उसके ऊपर सर्च करके, ढूंढ करके, वापस सर्च करके, रिसर्च करके पाया हुआ है. And so there is a perfect system, perfect design, and we all have everything perfect. हमें जो जरूरत है ना बचपन में ना, वो सब लोगों को होता है ना. तो मैं एचआर जैसे कॉलेज में गई थी ना, लेकिन फिर भी स्कर्ट पहनने की हिम्मत नहीं करती थी. वो वहां पे तो बहुत छोटे छोटे स्कर्ट पहने. क्यों? क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसे लगता था मेरे पैर है ना बहुत देवदे है, मतलब मोटे मोटे पैर है, कैसे कैसे पैर है. तो सालों तक ना आई ऑलवेज यूज टू से यार कैसे पैर है मेरे, कैसे पैर है मेरे, कैसे पैर है मेरे. अरे फिर बहुत सालों के बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा काम क्या है, रात दिन भागने का. सुबह जो भी है, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद में 5:30-6 बजे तो क्लास में पहुंचना होता है. एक दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ से यहाँ से वहां, पूरा घूमते घूमते ये करो वो करो, इसके लिए करो उसके लिए करो, खुद के लिए करो, सब कुछ करते 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 भागते रहते भागते रहते भागते रहते. मैंने बोला यार मेरे पैर एकदम चिंटू से पतले पतले होते, मैं ये कर सकती थी क्या? हमें हर एक चीज, बाल के कलर से लेकर के लंबा नाक, छोटा नाक, ये नाक, वो नाक, ये हाथ, ये पैर, ये ऐसा शरीर, वैसा शरीर, एवरीथिंग कम्स टू सूट आवर नीड, द वे वी नीड टू यूज देम, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट कम्स so beautifully. We don't realize that time. If we pay attention thoda bahut, and then we come to oh really, and then we realize we wonder उसको कैसे मालूम. we wonder, बड़े हो जाते फिर then we wonder मेरी माँ को कैसे मालूम था. Exactly like that. जब हम ऋषि मुनि बनते या वो लेवल पे पहुंचते थोड़े सचमुच में, and then we realize that he has given us everything. He is a divine programmer. उसने क्या 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 अच्छे से बनाया है, कितनी सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के अंदर दूसरी, दूसरे के अंदर तीसरी, तीसरे के अंदर चौथी, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर. कैन देयर बी एनी प्रोग्राम विदाउट दिस हाईएस्ट प्रोग्रामर? एंड दैट्स व्हाई जिसने इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया वो खुद कितना कॉम्प्लेक्स होगा बॉस. फिर बहुत सारे लोग बोलते कि भगवान तू तो ये, भगवान तू तो वो, तू तो बड़ा महान है, मैं बेचारा छोटा, मैं तेरे को कैसे पा सकूंगा. हम लोग तो ये कहते हैं कोई मंदिर में जाना तो वो बुलाएंगे तब जाएंगे. अरे खुद को नहीं जाना है. अगर हमें जाना होता है कहीं पे भी, कोई रोक सकता है क्या हमें? कभी भी. लेकिन अगर मंदिर जाना है या तो साधना शुरू करनी है, ऐसा कुछ है ना, वो तो भगवान जब कराएंगे ना तब करेंगे. उसमें ना उसके ऊपर ही डाल देते, जैसे लास्ट क्लास में बोला था ना, वी ऑलवेज वांट अ हुक जिसके ऊपर हम सारे आरोप ब्लेम डाल सके. करेक्ट? एंड सो ही सेज दैट इफ यू डिजायर मी, just desire, then I am always there. He is like this.
तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। वो कहता है कि सिर्फ मुझे याद कर, तू एक दफे आवाज लगा, देख मैं हूं कि नहीं। हम बोलते कि कितनी दफे आवाज लगाई, वो आया ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि आवाज में दम नहीं था, लेकिन अगर कहीं से ऐसे ही आवाज आती है, रक्षा या मैम ये वो, तो हम तुरंत घूमते हैं क्या? यूजुअली नहीं। क्यों? ये आवाज कोई पहचाना हुआ नहीं है। ये राजेंद्र भाई ना के आकाश नो के दीपमाला का के कंजा, आई डोंट नो दिस। अचानक से कोई आवाज देगा, कोई अचानक से पुकारेगा, तो हमें लगेगा क्या कि वो मुझे पुकार रहे हैं। हमने भगवान के साथ कभी रिश्ता बनाया है क्या कि उसको लगे मेरा बेटा मेरे को पुकार रहा है? एक दफे रिश्ता बना करके देखो, हल्की सी आहट सी, माँ को पता चल जाता है मेरा बेटा छोटा सा बच्चा दूसरे रूम में सोया है, उसको पहले से पता चलेगा अभी वो उठ रहा होगा, या तो अचानक से उठने का टाइम नहीं है फिर भी उसको कुछ आगे पीछे होता है, या तुरंत वो चेक करने जाती है। हाउ? वाई? कनेक्शन, कनेक्शन। यस, he is that powerful connection with us. We don't have to be worried about क्या करना है, just initiate, शुरू करो, and then देखो he will come. And he has surrounded us with all possible evidence. कहाँ कहाँ हम उसको पा सकते हैं, कैसे कैसे में पा सकते हैं। पूरा भगवत गीता, पूरे सारे स्क्रिप्चर्स, सब जगह पे उसने अपना एड्रेस दिया हुआ है। He reveal himself us in detail. And so if we want to connect to him, simple way, easiest way to connect him is with scriptures. How many scriptures are there who describes God or pure consciousness? कितने स्क्रिप्चर्स है जिसने भगवान के बारे में कहा है? यस प्लीज, यस रेणुबाला, कितने स्क्रिप्चर्स है? मैम बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, तो हमें बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे क्या? एक भी नहीं होता है भाई, ये तो गड़बड़ है, ये चिटिंग है हमारे साथ। डू वी हैव टू रीड ऑन? कितने स्क्रिप्चर है? 1000, 2000, 5000, 50,000, लाख, 50 लाख, 100 लाख, कितने? मिलियंस, ट्रिलियंस? आर देयर सो मेनी स्क्रिप्चर्स? ऑल ऑफ देम आर व्हाट? पार्ट ऑफ द मेन स्क्रिप्चर। कितने स्क्रिप्चर है? वन वेद, correct? Only one scripture was Veda. In that, but too many things are given. Each and everything. Yes, agree. Too many things are given. Each and everything, each and every sutra, each and every shlok, each and every richa mentions the same thing in a different way. That's all. कोई भी एक को पकड़ो. And then you will see, you find him. And so, are we supposed to learn so many things? सबको इसको उसको सबको याद करने की जरूरत है हमें? नहीं। कोई भी एक जो हमें पसंद आ गया है, कोई भी एक जो मुझे समझ में आता है, कोई भी एक चीज जो मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, फॉलो कर सकती हूँ, बिकम दैट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। खुद के ऊपर, हमारे पर छोड़ा हुआ है, हमें जो पसंद आए उसे उठाओ। एंड देन वो तो बोलता है कि मैं तो कोई भी चीज से मैं खुश होता हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी मेरे को तू चढ़ा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब मैं ही हूं। इसीलिए सो ही हैज नो चॉइस, वी हैव ऑल पॉसिबल चॉइस। एंड सो कौन से स्क्रिप्चर्स हमें मालूम है? मैम अपने, हम लोग ने तो अभी तो सारे षड दर्शन हमें मालूम है, हम सारे षड दर्शन के साथ जुड़े हैं अभी भी ना, वी अंडरस्टैंड, वी लाइक देम। लेकिन कौन सा ऐसा शास्त्र है या कौन सा ऐसा दर्शन है उसके साथ में थोड़े बहुत जुड़ गए, जिसकी वजह से तो षड दर्शन भी स्टडी किया हम लोग ने।
कौन सा है शास्त्र या कौन सा पाठ हमने चूज किया है? बाय पतंजलि हुक और क्रूक? पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र करेक्ट, बाय एनी बाय डिफॉल्ट सही, करेक्ट। हमें नहीं मालूम था हम कैसे योगा में आए, क्यों आए, लेकिन आ गए हैं, और काफी एटलीस्ट, और ज्यादा नहीं तो 5-6 साल उसमें स्पेंड किया है। क्योंकि अगर एकदम पहला ही एकदम यू डोंट नो योगा एट ऑल, एकदम पहला ही है तो यूनिवर्सिटी के क्लास में नहीं पहुंचते हैं। उसके लिए यहाँ आने के लिए सिर्फ 12th नहीं और कुछ भी थोड़ी बहुत घिसाई होनी पड़ती है, तब जाकर के हम पहुंचते हैं। और एडवांस के लिए तो बहुत सारी घिसाई हो जाती है ना, तभी वही लोग एडवांस में पहुंचते हैं, बाकी सब बेचारे नहीं पहुंच सकते हैं। करेक्ट। तो अगर हम एडवांस तक पहुंच गए मतलब वी हैव स्टार्टेड ओके योगा थरली, कहीं ना कहीं कैसे कैसे। सो इज पतंजलि योगा, व्हाट इज योगा एंड व्हाट इज द पाथ ऑफ योगा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योगा। ओके, सो yoga follows which theory 100% completely, based on which theory? सांख्य। Sankhya. Is Sankhya accepting Ishvara, God? नो। सांख्य को हम क्या कहते हैं? निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी। ईश्वर के बारे में सांख्य ने कभी कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो सांख्य ने जो कहा है वही अगर योगा मानता है, तो सांख्य में ईश्वर को नहीं कहा है, तो फिर योगा में भी ईश्वर के बारे में नहीं होना चाहिए है। ऐसे लिखा है ये मंदिर जाओ मंदिर जाओ, नहीं लिखा है, लेकिन ईश्वर का नाम आता है, आता है। तो मतलब योग ने ईश्वर के बारे में कहा है, कहा है, कहा है। क्या कहा है? दैट मच तो वी नो राइट। क्या कहा है ईश्वर के बारे में? क्या कहा है? क्या कैसे कहा है? पहला सूत्र कौन सा है? ईश्वर प्रणिधानाद्वा, दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स, द स्टोरी बिगिंस विथ ऐसे पिक्चर खुलता है ना, सो जो पहला सीन होता है उसमें है ना, खुलजा सिम सिम हुआ ना, तो सबसे पहले कहा है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। व्हाट डज इट मीन? हमें मालूम है राइट। ईश्वर प्रणिधानाद्वा मीन्स व्हाट इज ईश्वर प्रणिधानाद्वा? Surrender to God. Submission. पूरे सूत्र का अर्थ, हाँ, सरेंडर टू गॉड वो ईश्वर प्रणिधान का मीनिंग करते हो। ईश्वर प्रणिधानाद वाह, व्हाट डज इट मीन? सो इट इज इन कनेक्शन, दिस सूत्र, दिस योगा सूत्र इज इन कनेक्शन विथ अदर सूत्रस। एनीबडी? इज दिस सूत्र इन कनेक्शन विथ अनदर? वाह 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 हम जब कहते हैं, वाह मीन्स व्हाट? Or. मैम या तो और, यस एंड, ऑल अभ्यास दिस मीनिंग इज ऑफ वाह। यस यस मीना रानी जी, अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान के क्या द्वारा बात है, वेरी नाइस। हाँ, Right. so अभ्यास वैराग्य एंड ईश्वर प्रणिधान। हाँ, तो अभ्यास वैराग्य क्या ईश्वर प्रणिधान से भी क्या क्या होता है, क्या करना है? क्या होता है? चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं हम। वेरी नाइस। हाँ, पता है एडवांस के लायक है हम लोग सब। वेरी नाइस। सो ऋषि पतंजलि ने कहा है योगा मीन्स, हाँ मैम बहुत टाइम के बाद है ना, डिप्लोमा में तो बार बार लगातार ये हर एक बार रिपीट करते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? योगा मीन्स वृत्ति निरोध। हाँ, सो चित्त वृत्ति का निरोध मीन्स योगा। सो योगा इज व्हाट? चित्त की वृत्ति को निरोध करना, चित्त की वृत्तियों को बंद करना, स्टॉप करना, सीज करना, कंप्लीटली बंद कर देना, वो योगा है। तो ये योग हम पाएंगे कैसे? ये योगा मतलब चित्त की वृत्ति का निरोध हम कैसे पाएंगे? हाउ वी विल बी एबल टू अटेन, अचीव वृत्ति निरोध? अभ्यास वैराग्य। and then ऋषि पतंजलि says अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तन्निरोध मतलब किसका निरोध? तन मीन्स हियर, तत् मीन्स व्हाट? ये कहीं ना कहीं एग्जाम में भी पूछा था राइट। हियर तत् मीन्स व्हाट? चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चित्त वृत्ति? चित्त इज व्हाट फॉर आवर नॉर्मल Modifications of the mind. चित्त मीन्स Impurities चित्त of the फर्स्ट, mind. देन वृत्ति। हमारा चित्त मन means में mind, mind,
And vritti means modification. What does modifications means? Fluctuations, changes, Impurity. up and down, upheaval. हमारे दिमाग में, हमारे मन में, yes, दिमाग and मन is not same, लेकिन हम भी correct generally. Okay, so हमारे मन में जो भी changes होते रहते, वो क्यों होते रहते हैं? हमारा मन वृत्ति की वजह से। वृत्ति की वजह से। व्हाट इज दिस वृत्ति, व्हाट डज दिस चेंजेस? इसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, ये समझ में आया, वो समझ में नहीं आया, वगैरह। सो व्हाट इज दैट जिसकी वजह से चेंजेस हुए? थॉट्स, करेक्ट, हमारे विचारों की वजह से। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वृत्तिस, तो इट इज विचार प्रवाह। कभी विचार अकेला एक नहीं हो सकता है हमेशा, बट इसके बाद है ना पूरा सीक्वेंस लंबा, करेक्ट। हाँ, सो हमारे मन के अंदर मतलब मन का खुद का अस्तित्व कोई है क्या? हम लोग ने जब मन के बारे में, मन इज व्हाट, लाइक दुपट्टा, हाँ सुंदर दुपट्टा है ना, इस पे दिखावा कर रही है ऐसे ऐसे करके। व्हाट इज माइंड? माइंड इज दुपट्टा और कपड़ा। वी हैव गिवन दिस एग्जांपल इन डिप्लोमा, करेक्ट। इज इट माइंड लाइक कपड़ा? व्हाट इज अ कपड़ा? हाँ, भूल गया सब। Filters the thought. हाँ, Filtering the thought. हाँ नहीं, कपड़ा नहीं, हाँ तो डेफिनेटली भूल गए। व्हाट इज कपड़ा? दुपट्टा, चादर, कोई भी कपड़ा है क्या? अल्टीमेटली क्या है, कैसे बना है वो? धागों से। हिंट दे रही है। ताना बना। ताना बाना, वेरी नाइस, याद आ गया। तो इट्स अल्टीमेटली नथिंग एल्स बट थ्रेड्स। कोई भी कपड़े के एक के बाद एक ऐसे थ्रेड निकाल दिए तो क्या बचा? क्या बचा? Nothing. कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। एग्जैक्टली लाइक दैट। हमारा माइंड कैसे बना है, किस चीज से बना है? सिर्फ थॉट्स वुवन एंटर वुवन टुगेदर, एंड सो इट लुक्स लाइक आवरण, इट लुक्स लाइक क्लोथ। अगर हम एक के बाद एक सारे थ्रेड हटा दे, विल देयर बी कपड़ा? Will there be mind? If we remove, if we stop all the vrittis, we stop all the thoughts, there will not be. यही थॉटलेस स्टेट या तो वृत्तिलेस माइंड। वृत्तिलेस माइंड हो सकता है? नो। थ्रेडलेस कपड़ा हो सकता है? नो। अगर थ्रेड निकल गए, कपड़े का अस्तित्व रहा नहीं रहा? एग्जैक्टली लाइक दैट। थॉट्स नहीं रहेंगे, मन का अस्तित्व रहेगा नहीं। एंड सो देर इज नो माइंड, सो देर इज नो इन बिटवीन, कोई आवरण ही नहीं है। एंड लो, बीच में सारे गार्ड्स, सारे रास्ता रोको आंदोलन वाले लोग निकल गए, क्या रहा? मैं और वो, प्योर कॉन्शियसनेस। एंड दैट्स व्हाट वी रियलाइज। हाँ, तो ये वृत्ति निरोध कैसे करेंगे? ये सारे थ्रेड्स को कैसे हटाएंगे? सारे थॉट्स को कैसे हटाएंगे? कैसे? And so Rishi Patanjali says, you can attain चित्त वृत्ति निरोधा। सारे थॉट्स को, सारे थ्रेड्स को आप कैसे हटा सकोगे, कैसे स्टॉप कर सकोगे, कैसे सीज करोगे, कैसे उसका निरोध करोगे? बाय अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस, दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कार, आसेवी। तो ऐसे क्या करना है? यत्न, स्टेडी एफर्ट, दीर्घकाल तक करना है, नैरंतर्य करना है, विथ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड करना है, सत्कार आसेवितो, एंड दृढ़भूमि, डीपली रूटेड हो, उस हिसाब से हम प्रयत्न करेंगे, यत्न करेंगे, तो इट विल हेल्प मी टू स्टॉप ऑल माई वृत्तिस। दैट इज द ओनली वे। There are so many things with abhyas I may not be able to attain. Then for that what? कोई वृत्ति ऐसी है, more try, more you try. What will happen? What will happen? It will be bigger. It will become bigger. It will become stronger. You know, हम ऐसा कहते हैं ना, I don't want to see you. I don't like you. I don't want this. जब हम किसी कोई चीज हमें नहीं चाहिए होती है, तो बार बार लगातार हमारे दिमाग में क्या आता है? वही चीज आती है। वो वाला एग्जाम्पल था ना कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर या जो भी थे, उन्होंने एक बहुत बड़े गुरु थे, और वो हेरा गेरा नथु खेरा टाइप का एक शिष्य आ गया, बोले कि मुझे ना, मैंने सुना है कि आप बहुत महान हो, मेरे को ऐसा कोई मंत्र बताओ।
और वो है ना, वो थोड़ा ट्रिकी वे में पूछा कि अगर वो गुरु नहीं बताए ना तो फिर वो सबको प्रूव करेंगे कि ये गुरु को कुछ आता नहीं है वगैरह वगैरह। तो गुरु बोले भाई मैं गुरु हूँ बॉस, तू रुक अभी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है ना, ये मैं तेरे को मंत्र देता हूँ, ये मंत्र तेरे को सिर्फ और सिर्फ 11 दफे बोलना है, सिर्फ। बोले कि 11 दफे में मेरा मोक्ष हो जाएगा, 11 दफे में मुझे भगवान मिल जाएगा, 11 दफे में मुझे पूरे विश्व का वैभव मिलेगा। बोले हाँ मिलेगा, जो भी उसकी मांग थी। बोले मिलेगा, जा तथास्तु, मिलेगा। बोले अरे वाह सच्ची में? बोले हाँ इधर कान में बताता हूँ। इसलिए मेरे को मालूम नहीं है वो मंत्र कौन सा था, क्योंकि उन्होंने कान में बताया था। तो उसने कान में बताया, बोला कि जा। तो जैसे ही जाने गए, ए रुक 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 रुक। तो बोले क्यों, क्या है? तो बोले कहानी में ट्विस्ट है। तो बोले क्या? बोले कि जब तू ये मंत्र का जप करे ना, तब मंकी को याद मत करना। कुछ भी हो जाए तू जप कर, सिर्फ 11 दफे जप करना है, लेकिन जप करते वक्त बंदर को याद मत करना। अभी बंदर और कभी जिंदगी में उसके साथ कोई नाता ही नहीं था। तो वो अरे मैं बंदर को खुद याद करूं, पागल हूं क्या? मैं नहीं करूंगा, जाओ। बोले हाँ ठीक है, तो तू जा, तो तेरे को सब कुछ मिला। और वो गया। और जैसे ही ना सब कुछ तैयारी वैयारी के नहा धो करके एकदम अगरबत्ती की, ये की वो की, और वो 11 दफे बोलने के लिए, जैसे बेटा क्या याद नहीं करना था? अच्छा बंदर याद नहीं करना था। अरे भाई बंदर याद हो गया, क्या नहीं करना था? अच्छा बंदर नहीं याद करना था। दैट कम्स फर्स्ट। नो, दैट्स व्हाट रावण डिड। आई डोंट लाइक राम। मुझे राम के साथ नहीं कनेक्ट करना है, नहीं कनेक्ट करना है, नहीं कनेक्ट करना है। नेगेटिव भक्ति इज स्ट्रॉन्गेस्ट भक्ति। नेगेटिव कनेक्शन, भक्ति इज कनेक्शन, राइट? भक्ति इज कनेक्शन, नेगेटिव कनेक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन। इसीलिए प्यार हमें नहीं मारता है, द्वेष हमें सबसे ज्यादा मारता है। करेक्ट? क्योंकि जो नहीं चाहिए वो पहले आकर के रुकता है हमारे पास। जो चाहिए वो जल्दी नहीं मिले, हो सकता है, लेकिन जो नहीं चाहिए ना तो तुरंत आकर के मिलता है हमें। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड सो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे बार बार लगातार ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसकी मैं अगर प्रैक्टिस करती हूँ, अगर उसका मैं अभ्यास करूंगी, तो जो नहीं चाहिए वो पहले आएगा, तो करने का क्या? इसलिए डेवलप डिटैचमेंट, वैराग्य। ये थॉट नहीं चाहिए वो बोलने का ही नहीं। Whatever thought comes, let them come. You do not react to it. अच्छा है बुरा है तो अच्छा चाहिए, बुरा नहीं चाहिए। करेक्ट? नहीं, हाँ डिप्लोमा में किसी ने पूछा था क्योंकि मैम ऐसे हमसे गलतियां क्यों होती है, हम लोग गलत चीज पहले क्यों करते हैं? करेक्ट? गलत रास्ते पे आसानी से जाते हैं। साधना करनी है, शुरू करनी है, कितनी दफे संकल्प लेते हैं, हर गणपति के टाइम पे, हर नवरात्रि के टाइम पे, हर दिवाली के टाइम पे, हर नए साल में। हाउ मेनी टाइम्स हम लोग ने संकल्प लिए होंगे? लेकिन जो गलत करना है उसके लिए कभी भी संकल्प लिया है? और अगर गलती से एक चीज वो शुरू हो गई, चाय पीना शुरू हो गया या कॉफी पीना शुरू हो गया, कुछ और, हाँ उसके लिए संकल्प है, और वो एकदम चिपक जाता है बराबर। ऐसा कहा जाता है 2 या 3 दफे वो वही टाइम पे वो चीज किया आपने, दैट बिकम्स योर आदत। 2 या 3 दफे अगर मैंने मंत्र का पाठ किया या प्रार्थना की तो क्यों वो मेरी आदत नहीं बनती है? लेकिन ये वाली गलत वाली आदत है, 2 या 3 दफे किया एंड तुरंत चिपक जाती है। यस दैट इज व्हाट। तो इसलिए क्या? उसका राग नहीं, उससे अटैचमेंट नहीं। कैसे नहीं? तू मुझे नहीं चाहिए ऐसे मत बोलो, आई हेट यू नहीं बोलो, नहीं, धीरे धीरे डेवलप दैट डिटैचमेंट। उसे आता है आने दे, जाता है जाने दे। यू बिकम इनडिफरेंट टू इट। दैट इज व्हाट द वैराग्य, राइट? बिकम इनडिफरेंट टू इट। है नहीं है, नहीं है। एंड देन धीरे धीरे उसको बार बार लगाता लगेगा, ये तो मेरे को भाव ही नहीं देता है। डू वी गो एंड मीट द पर्सन हु इज नॉट गिविंग अस भाव? अगर हमने 5 दफे दिवाली के मैसेज उसको किए, उसने मेरे को 5 में से 1 दफे भी रिप्लाई नहीं किया, फिर नेक्स्ट दिवाली के वक्त उसको हम लोग मैसेज करेंगे क्या? मैं अभी सोच रही थी यार, पहले तो मेरा बहुत लंबा हुआ करता था मैसेज का, कम से कम 2-3 घंटे लगते थे मुझे मैसेज करने में। अब क्यों नहीं लगते हैं? मैम वो आपने वो रूटीन बना ली है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप 4 बन गया है इसलिए। नो, देयर आर सो मेनी पीपल। बोला अभी अभी किसी का याद आया कि उनके घर में कोई रहे नहीं, अरे मेरे को तो पता ही नहीं चला। बोले कि हम, फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं तो हमेशा मैसेज करती थी,
मैं तो बार बार लगातार फोन भी करती थी, फिर क्या हुआ? वही दे हैव नॉट कनेक्टेड। तो हमें अगर कोई बार बार लगातार जाने के बाद भाव नहीं देता है तो हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली हमारा मन क्या करता है? अपना मन उतरी जाए, राइट? है ना, हम दुखी हो जाते हैं ना, जाने देना, फायदा क्या, लीव इट। दैट इज व्हाट वैराग्य इज, सिंपल। धीरे धीरे उसका आकर्षण, धीरे धीरे उसका खिंचाव कम होने लगता। बट देयर आर थिंग्स जो अभ्यास से भी अटेन नहीं कर सकते। देयर आर सम वृत्तिस जो अभ्यास से निकाल नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, और वैराग्य से भी उसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो क्या करने का बॉस? हम ऋषि पतंजलि को क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट, राइट? बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, मन के जानकार है। उनको हमारी कैपेसिटीज भी, हमारी ताकत, हमारी पोटेंशियलिटी भी मालूम है, एट द सेम टाइम हमारी वीकनेस भी मालूम है। ये कितना भी प्रयत्न करेगा ना मेरा बेटा, ये नहीं कर सकेगा। वो कितना भी कोशिश करेगा ना, तो ये नहीं छोड़ सकेगा, बराबर? एंड सो फॉर दैट, तो उसका मतलब क्या है? वो लोगों के लिए कोई हक ही नहीं है, उसके लिए कोई चारा ही नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट टू स्टॉप द वृत्तिस। देयर इज नो अदर वे आउट टू कम आउट ऑफ दुख। दुख क्यों है? वृत्तियों की वजह से। दुख क्यों है? क्लेश की वजह से। Klesha leads to samskaras, then samskara leads to vrittis. And so vritti, klesha, samskara, they are always together in the circle. वो घूमते ही रहते, घूमते ही रहते, घूमते ही रहते। वृत्ति की वजह से संस्कार बनते, संस्कार की वजह से क्लेश बनते, क्लेश की वजह से, मतलब वो चलता ही रहता है, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, और हम उसमें घूमते ही रहते हैं। And that's why we need to stop it once and for all. कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है। So either start practicing, जो हमें फर्स्ट इजीली लगे वो अभ्यास करो। सो जो चीजों के लिए अभ्यास कर सकते हैं उसके लिए हम अभ्यास करते हैं। जो चीजों के लिए हम वैराग्य की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो चीजों के लिए वैराग्य। लेकिन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच इज नॉट बीन एबल टू स्टॉप्ड बाय अस। वी आर नॉट एबल टू डू दैट। इसीलिए वो हम लोग कौन सा वाला पत्ता बाद में निकालते हैं? हाँ, हुक्म का पत्ता। सबसे भारी वाला हो वही ना, हुक्म सबसे का strong. पत्ता। And that's टिक्का. what ऋषि पतंजलि gives. नहीं हो रहा है? My child, don't worry. You have another way. And that is ये ले, ईश्वर प्रणिधान अथवा। ईश्वर प्रणिधान. With the help of ईश्वर प्रणिधान, you can come out of, you can stop all possible vrittis. अभ्यास करना जरूरी है, कंपल्सरी है, जरूरी है। कंपल्सरी है क्या? अभ्यास के साथ वैराग्य जरूरी है। अभ्यास एंड वैराग्याभ्याम, they both are going hand in hand. But ईश्वर प्रणिधान अकेला, only ईश्वर प्रणिधान, only ईश्वर प्रणिधान is capable of अभ्यास and वैराग्य both. Is वैराग्य easy? Is अभ्यास easy क्या? दीर्घ काल नैरंतर्य, कुछ इजी नहीं है। हाँ कुछ इजी नहीं है। एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं एकदम इजी चीज देता हूं, एंड वो है ईश्वर प्रणिधान अथवा वो है ईश्वर प्रणिधान। सो हु इज ईश्वर? मैम, लास्ट टाइम के 2-2.5 घंटे और आज भी आधा लेक्चर नहीं, आधा नहीं, पौना लेक्चर उसी में डाला है। तो अभी नाउ स्टॉप। हमें मालूम है हु इज ईश्वर, हमें मालूम है हु इज ईश्वर इन जनरल वे। डू वी नो हु इज ईश्वर अकॉर्डिंग टू ऋषि पतंजलि? ही सेड, क्योंकि मुझे मालूम है तुम लोगों को लगता है आई नो इट, મને બધું આવડે છે, MBA हर एक चीज में मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम है व्हाट इज और हु इज ईश्वर। बट वेट, यू मस्ट नो ईश्वर इन राइट वे। And so, because according to Sankhya, there is nothing like Ishvara. Barabar? And if yoga is following the Sankhya 100%, so how can Rishi Patanjali or yoga for that matter speak about Ishvara? And so what kind of arguments we have given for that?
Is Sankhya actually Nirishwara? And if Sankhya and Yoga, both for that matter, not accepting Ishvara, तो उसको नास्तिक दर्शन कहना चाहिए ना? उनको नास्तिक दर्शन क्यों नहीं कहते? ईश्वर में नहीं मानते, वेद को मानते हैं ना। वेद को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो नहीं, योगा ने माना है, लेकिन ईश्वर में मानते हैं। तो ईश्वर में अगर मानते हैं तो ये मानते हैं क्या कि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है? पुरुष को मानते हैं ना। हम्म पुरुष। हाँ, वो पुरुषत्व में मानते हैं, और पुरुष ईश्वर है ऐसा नहीं कहते हैं। कहीं पे भी कहा है? नहीं। तो पुरुष इज ईश्वरा, पुरुष इज इक्वल टू गॉड। They have never mentioned, they have never equated Purusha to Ishvara. शक्ति को मानते हैं। शक्ति को मानते हैं, ये वो प्रकृति बोलते हैं, लेकिन वहां पे शक्ति शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम शिव बोलते हैं तो शक्ति, पुरुषा तो प्रकृति, प्योर ब्रह्मन तो माया। शब्द में इधर उधर नहीं कर सकते हैं भाई। Yeah, terminology we have to follow the same terminology. Very smart there. उसका एक कारण है, हर एक चीज का एक लैंग्वेज होता है, करेक्ट? पर्टिकुलर वे में उसका, तो क्योंकि it goes with that. So if we are going through that path, we can easily understand, we can connect and can go ahead with that. Okay? So वो शक्ति में नहीं मानते हैं। शक्ति was not the biggest question, but yes, वो ईश्वर में so in what way they are not, even Sankhya, if he is not, अगर हम लोग बोलते हैं कि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है, तो I understand we cannot remember everything spoken by me. मेरे को भी इसलिए याद रहता है क्योंकि बार बार लगातार मैं पास ही नहीं होती हूँ। वहीं पे हम लोग टिके हुए हैं। इसीलिए तो इसलिए पास होकर के चले जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन हम तो वहीं पे टिके हैं, तो बार बार लगातार रिपीट हुआ है। एंड उसी को रिपीटिशन की जरूरत होती है। किसको रिपीटिशन की? जो सीखता नहीं है लाइफ में। करेक्ट? एनीवे, सो बिकॉज आई हैव रिपीटेड एंड दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर कि लास्ट ईयर मैंने ये लिया था, जब हमने सांख्य किया था ना, तब हमने कहा था कि वी कैन नॉट क्लेम। बहुत सारे लोग एक से स्ट्रांगली क्लेम करते हैं कि सांख्य निरीश्वरवादी है। नहीं, हम नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि सांख्य कारिका में, सांख्य दर्शन में बकायदा किया गया है कि जब कपिल मुनि ने नॉलेज दिया आसुरी को, एंड देन इट पास ऑन, इट वाज वेरी वास्ट। फिर फाइनली जब ईश्वर कृष्ण ने लिखा है, तो सांख्य में कितने श्लोक है? 2-2 लाइन के सांख्य में। स्वाति, कितने श्लोक है सांख्य में? 72 श्लोक ओनली। अरे 2-2 लाइन के हैं तो कितने लाइन्स हुए? 144 लाइन्स। करेक्ट? 144 लाइन्स। जैसे योग सूत्र तो सूत्र है, ये तो कारिका है। नाउ टेल मी, 72 श्लोक्स में 72 कारिका में पूरा सांख्य समझा सकता है क्या कोई? जब कपिल मुनि ने कहा था, सब इतना ही कहा था क्या? इट वॉज लॉस्ट कंप्लीटली। लेकिन फिर इधर उधर, यहाँ इसने सिखाया, उसने सिखाया है, कहीं महाभारत में लिखा है, कहीं भगवत गीता में लिखा है, कहीं वहां पे लिखा है, जहां जहां पे भी सांख्य का वो रेफरेंस आया था, वो सारे रेफरेंसों के द्वारा, एंड ईश्वर कृष्ण ने लेगेसी में ये गुरु से फिर दूसरे डिसाइपल को, डिसाइपल जब गुरु बनता है तो उसने अपने डिसाइपल को करते 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 जब ईश्वर कृष्ण के पास वो नॉलेज आया, तब उन्होंने वो सारे नॉलेज को, जो भी अवेलेबल था, उसको 72 कारिकाज में लिखा। उसमें भी उन्होंने कहा है, जितना भी एक्सप्लेनेशन है, जितनी भी स्टोरीज है, ये प्रिंसिपल समझाने के, वो सारे को आउट कर दिया है मैंने, एकदम कंडेंस फॉर्म में लिखा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के बारे में अगर कहीं पे कोई सवाल है और उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वो देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बिकॉज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सांख्य, पर्पस ऑफ योगा फॉर दैट मैटर? सांख्य एंड योगा का पर्पस क्या है? हम लोग क्यों सीख रहे हैं सांख्य एंड योगा? योगा मतलब क्या? वृत्ति निरोध। वृत्ति निरोध क्यों करना है? वृत्तियों से मेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? है कि नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? यस, क्या प्रॉब्लम है? वृत्तियों की वजह से क्या होता है? chaos, डिस्टर्बेंस,
ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और उसकी वजह से क्या बनता है? मेरे कर्म, कर्म बंधन, कर्म फल की वजह से कर्म बंधन, एंड देन चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, एक जन्म एक की वजह से दूसरे 50 जन्म, 50 जन्म की वजह से दूसरे 500 जन्म, 500 की वजह से दूसरे 5000 जन्म। ये तो चलता ही रहता है, क्योंकि एक जन्म में जितने 5, 25, 50 कर्म खत्म करते हैं, उसके सामने कितने नए कर्म बांधते हैं? तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी नेवर एंडिंग हो रहा है। तो हमें क्या स्टॉप करना है? इसलिए वृत्तियों को स्टॉप करना है, राइट? और अगर वृत्तियों को स्टॉप करना है तो क्यों करना है? क्योंकि वृत्ति की वजह से मेरे जीवन में बंधन है, बंधन की वजह से मेरे जीवन में क्या है? दुख है। तो दुख में से मुझे निकलना है। सांख्य ऑल्सो स्टार्ट्स विद दिस, दुख, जीवन में दुख है और मुझे दुख निवृत्ति चाहिए, सुख प्राप्ति चाहिए। सुख प्राप्ति कैसी वाली सुख? कैसा वाला सुख चाहिए? 1-2 दिन के लिए, एक आध जन्म के लिए? कैसा सुख चाहिए हमें? ब्लिस, करेक्ट? इटर्नल ब्लिस, सच्चित आनंद, प्योर कॉन्शियसनेस, फॉर एवर इन ब्लिस, ये चाहिए हमें, हमेशा के लिए चाहिए। तो हमेशा के लिए दुख मुक्ति चाहिए, हमेशा के लिए सुख प्राप्ति चाहिए। तो ये वृत्तियों को, जो सारे प्रॉब्लम की जड़ है, करेक्ट? सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये वृत्ति। क्यों, कैसे? क्योंकि उसकी वजह से राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, ये सो अविद्या बिकम्स माय रूट कॉज। इसलिए उसको निकालने के लिए विद्या, मुझे ये सब दुखों में से मुक्ति चाहिए। तो ये वृत्तियां, ये दुख वगैरह आए क्यों, कैसे? तो मेरा अस्तित्व हुआ इसलिए, और मेरे साथ में ये प्रकृति का अस्तित्व हुआ इसलिए। अगर प्रकृति है, अगर मैं हूं, तो मैं और प्रकृति एक दूसरे के किस में आएंगे? आदान प्रदान, करेक्ट? If there are things, I will come in contact with things. I want, I don't want, all that things starts. That's how vritti starts. When the things are there, when the material world is there, so I come in contact with that. And when I come in contact with that, then ye acha hai, ye bura hai. I love it, I hate it, I like it, I do not like it. I want it, I don't want it. All that starts, and with that my karma happens. With that my karma phala happens, and with that my karma bandhana happens. Life and death happens. And so मुझे ये सब की जड़ क्या है? वही अविद्या है। ये सब की जड़ क्या है? ये मेरे वृत्ति से, मेरे क्लेश से। तो उसको स्टॉप कैसे करेंगे? कैसे स्टॉप करेंगे? स्टॉप होगी क्या? यस, होगी। कैसे करेंगे? आइदर अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास एंड वैराग्य लास्ट ईयर कर लिया, कर लिया, प्रैक्टिस दैट। एंड दिस ईयर और ईश्वर प्रणिधान। एंड सो ऋषि पतंजलि सेज कंप्लीट प्रणिधान। मैं बहुत स्मार्ट प्ले करूंगी। कंप्लीट प्रणिधान टू ईश्वर। व्हाट इज कंप्लीट प्रणिधान एंड हु इज ईश्वर अकॉर्डिंग टू ऋषि पतंजलि? दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। नमो नमः। थैंक यू सो मच। क्योंकि आज तो देर तक नहीं रख सकती हूँ ना आप लोगों को। अगर वो स्टोरी शुरू करेंगे तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्ट, पुरुष विशेष, ईश्वर। ईश्वर की डेफिनेशन ऋषि पतंजलि ने दी है। इट इज अ सिस्टम। ईच एंड एवरी स्क्रिप्चर गिव्स देयर ओन डेफिनेशन। क्योंकि वो क्या मानते हैं, वही तभी जाकर के हम वो पा सकते हैं या हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एवरी स्क्रिप्चर हैज गिवन, इफ दे बिलीव इन क्रिएटर ईश्वर, देन न्यायवैशेषिका हैज गिवन द ईश्वर's definition. Vedanta has given the definition of Brahman. Who is Brahman? What is Brahman? Each and every scripture gives, and so does Rishi Patanjali. And so he has described who is Ishvara. Ishvara matlab kya? Klesha, karma, vipaka, ashaya, aparamrushta, purusha, vishesha, Ishvara. And then how he is, ये ईश्वर कैसा है? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। वो सर्वज्ञ बीजम है। मतलब क्या? नेक्स्ट क्लास में। वो पूर्वेशाम अपि गुरु, पहले से गुरु है। हु इज गुरु? नेक्स्ट क्लास। काले ना अनवच्छेदा। कालो मतलब क्या? अनवच्छेदा। उसको छेद करके नहीं, वो पार, वो मतलब छेदा नहीं जाता है काल के द्वारा भी, टाइम के द्वारा भी। व्हाट इज एग्जैक्टली काल ओवर हियर? एंड देन उसका नाम क्या दिया गया है? यस, ऋषि पतंजलि बुआ बने हैं। उन्होंने अपने ईश्वर को खास नाम दिया है, प्रणव। तो उसका क्या करने का?
कैसे उसका जप करने का तो कैसे जप करने का? सी दी ऋषि पतंजलि हैज नॉट केप्ट अ सिंगल स्टोन अनटर्न. कहीं पे भी हम गड़बड़ नहीं करें. Step by step, from the very first sutra till the Kaivalya and last sutra, fourth chapter, he has given everything in sequence, systematic sequence, everything you need. You know, वो एक किट आती है ना, जो भी हमें जरूरत है वो सब मिलता है उसके अंदर. Exactly like that, no, पूरा package दिया है ऋषि पतंजलि ने in Patanjali Yoga Sutra. And then what will happen if I will practice this Ishvara Pranidhana? And then he says, Pratyaka Chetana Adhikama, you can realize who you are. And Antaraya Abhava. जो भी रास्ते के कांटे हैं, जो मुझे खुद से मिलने नहीं देते हैं, खुद को पहचानने नहीं देते, स्व को पहचानने नहीं देते, वो सारे अंतराय, whether it is klesha, whether it is samskara, whether it is vritti, will go away. And for that, what we want, that power, that vaibhava, वो तो आज सुबह ही हमने मांग लिया. May we all reach to that ultimate things. With a very small prayer after Om, we will complete. And in our next class, finally, yes ma'am, finally for you. इतना footage लिया, इतना background लिया, जितना foundation deeper, उतना ही strong building हम बना सकते हैं. फिर उसके बाद में कोई टेंशन नहीं होता है. Then सच चढ़ सकते सीढ़ियां. Right? And that's how we will reach ultimately unto the last realization. In this very life itself. We'll do one Om, O short, more long, followed by prayer for our Deepavali. Yeah, common prayer. We all know that. Small one. Inhale. Asato ma sat gamaya tamaso ma jyotir gamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. May we all go higher from this asat, temporary, fleeting, unreal, continuously changing material world to Sat Tattva, eternal, Shashvat, Sanatana Tattva. From the darkness due to avidya, let us all go to Prakasha, Jyotir, Sattva, light. And from this immortality, from this mortality, from this mrita, let us all reach to Amrita Tattva, immortality, that which exists forever. Let us all reach to that immortal, pure being, Ishvara,
in this very life itself. Namo Namaha. Thank you so much. May we all attain the highest. Have a very nice day, divine day, and blissful lifetime. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Shubha ma'am. Deepavali to everyone. Happy Thank you so much. Happy Thank you, Diwali. ma'am. Happy Diwali. Shubh Happy Deepavali. Diwali to everyone. Happy Diwali. Happy Diwali. And now, लड्डू पेड़े नहीं. अभी तो नया नया है, लड्डू पेड़ा बहुत हो गया. घुघरा, चकरी, काजू कतली, and बहुत सारी और सारी मिठाइयाँ. Let us all enjoy. Correct? Yes. ये मिठाइयाँ अलग अलग लेवल के सेटिस्फेक्शन हमें देती है ना. तो स्टेप बाय स्टेप हम हायर सेटिस्फेक्शन तक पहुंचे. राइट? यस. Ma'am, can I ask a question? या बट आज हम लोग शॉर्ट रखेंगे क्योंकि सबको जाना होता है. Yes, ma'am. अच्छा, एकदम शॉर्ट रखेंगे. अगर किसी को भी लेट हो रहा है तो यू कैन प्रोसीड, नो प्रॉब्लम. बोलो आरती. Ma'am, I want to ask a question. When we know that I have certain kleshas present with me, then Certain during that kleshas time only? when I'm Certain Yes, clashes sir. only? Do we know how many Most- clashes most- we have? Ma'am, Yes, klesha yes. is a part of me, a part of my vritti. But Okay. when I know this klesh is affecting me, I am having that awareness also. But then how can I have a control on these kleshas? I want to know तो that. वही तो ऋषि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास एंड वैराग्य एंड देन ईश्वर प्रणिधान टू कंट्रोल, टू स्टॉप देम, टू कम आउट ऑफ ऑल दिस क्लेशेस. दैट्स व्हाट ही हैज गिवन द वे आउट. अभ्यास करो, वैराग्य करो, एंड ईश्वर प्रणिधान का प्रैक्टिस करो. ये तीन, उसके द्वारा ही सारे क्लेश जाएंगे. यस, अभी अवेयरनेस आई है लेकिन अभ्यास शुरू हुआ है क्या हमारा? दीर्घ काल निरंतर. कितनी दफे ट्रायल किया? मेरी 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 जो भी वीकनेस है, मेरा जो भी क्लेश है, मतलब अविद्या है, अस्मिता है, राग द्वेष, जो भी है इसमें से. और वो अगर राग बोलते तो राग अकेला थोड़ा है. राग के अंदर कितने सारे शेड्स है, राइट? कितनी चीजों का राग है, कितनी चीजों का अलग अलग लेवल का राग है. ओके, कोई एक चीज को भी निकालने के लिए हमने क्या प्रयत्न किया? अवेयरनेस है लेकिन फुल अवेयरनेस भी नहीं है अभी तक. यस, वी आर वेरी हैप्पी दैट अवेयरनेस है. सो अभी तो एकदम प्री प्राइमरी स्टेज में अवेयरनेस आई है कि यार मेरे में प्रॉब्लम है, एंड वी एक्सेप्ट कि हाँ प्रॉब्लम है. हाँ, लेकिन उसको निकालने के लिए हमने कौन से प्रयत्न किए हैं? अगर अभ्यास किया है तो कितना किया है, क्या किया है अभ्यास में? दीर्घकाल किया, निरंतर किया, सत्कार, आसेवित नहीं, मतलब शुरू ही नहीं हुआ है. एक्चुअली स्पीकिंग हमारा अभी तो हम अभ्यास के अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है. अभी हम लोग क्या करें? पेपर सेट करें. अभी क्लास हमारा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग हमारा लैपटॉप सेट कर रहे हैं कि हाँ अभी क्लास शुरू होगा. करेक्ट? राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ कि नहीं यार मुझे अभ्यास करना चाहिए, नहीं यार मुझे अभी वैराग्य डेवलप करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये मेरे को बहुत तकलीफ देता है. अभी हमें ना एक्चुअली में पूरा पिक्चर भी नहीं है कि भाई मुझे सचमुच में तकलीफ है लाइफ में. हम इतनी तकलीफ में है ही नहीं. अगर बहुत ज्यादा तकलीफ में है तो तुरंत छोड़ेंगे, लेकिन हमारी तकलीफ वो पराकाष्ठा पे आई ही नहीं है. इसलिए इसमें से कोई चीज को हमें इजिली छोड़ना ही नहीं है. छोड़ना है क्या कोई चीज को इजीली हमें? या तो कोई चीज एकदम एकदम पूरी तमन्ना के साथ पाना है क्या? वो जब आता है ना तो अपने आप छूटता है. राइट? सो यस, अवेयरनेस है, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, एंड स्लोली स्टार्ट अभ्यास छोटा छोटा. इसलिए मैं कहती हूँ अभ्यास का छोटा पैकेट, वैराग्य का छोटा पैकेज. करेक्ट? छोटा छोटा स्टेप स्टार्ट करो, फिर वो बड़ा बड़ा होने लगेगा. हम लोग को सबको ये मालूम होगा. हम लोग काम नहीं करते, लेकिन एक दिन लेके बैठते हैं. हम लोग ऐसे तय करेंगे, एक लाइन लिखूंगी, एटलीस्ट एक पेज लिखूंगी. नहीं, मेरे को बैठने दे. एंड देन द मोमेंट वी सिट, फिर 2-3 घंटा काम कर डालते हैं. राइट? एम आई राइट? करेक्ट? हाँ, अभी हम लोग वो लेवल पे है. हमें मालूम है करना है, हमें मालूम करना है. एक दफे बैठे नहीं है, एक दफे शुरू नहीं किया है, लेकिन शुरू करेंगे ना बराबर सही ढंग से, एंड देन यू विल गो, देन यू विल रीच. राइट? Okay, you are getting it, Aarti? Yes.
So all the best. Let's begin the journey. Let's begin the actual work. Groundbreaking. नारियल फोड़ते हैं and शुरू करते हैं. Right? Okay. Anything else? No. Namo Namaha. Thank you so much. Namo Namaha. Namo Namaha. Anything else, Aarti? Namo Namaha. Namo I Namaha. understood. I have to start studying on it. I understood, ma'am. Studying और practicing जो भी कुछ है Thank you, ma'am. इसके बारे में. Okay. My pleasure. Namo Namaha. Namo Namah. Namo Namaha.